Yes, very good morning, all of you. So, I hope you all are doing well. Myself, Dr. Aditi Papade, and I welcome you all to my class. So, just a short introduction about myself. I have pursued PhD in diabetes, Masters in Bioanalytical Sciences, which is equivalent to Pharmaceutical Sciences. Then, I have also done my BSc in Biochemistry. All these I have done from Ruya College. A PhD I have done from Khalsa College, Mumbai. And from my 11th standard to my MSc, I was in Ruya College, which is in Matunga. And I did B.Ed from Pune University, and I was topper in B.Ed in my college. So I have 12 plus years of teaching experience. In fact, this is 13th year going on now. And I have taught students of all boards in my career spanning of 12 and a half years. I have taught state board students, CBSE board students, ICSE board students. In fact, I have also taught semi English medium students. So, this is my AP Maha is my referral code, which you can use to join special and plus classes on an academy platform. And as you can see, my YouTube referral code is AP MAM Live. So, if you like my lectures, do use this referral code and do join me for all my lectures henceforth as well. I have already started with chapter 1. So I have chapter 1 is 11th standard, first chapter. The name goes as Living World, correct? So two lectures I have already covered. The videos are already there on YouTube. So please go through them. If you have any doubts, any queries, you can always ask me in the comment section, and I would be really glad to solve your all queries. ठीक है? तो बिल्कुल भी डरने की या शर्माने की ज़रूरत नहीं है. Don't fear, don't shy. Go ahead. If you have any queries, any doubts, always welcome. So in today's part, what I'm going to teach is taxonomical aids. So what are taxonomical aids? What is the significance of taxonomical aids? We'll discuss that first. And of course, then we'll see some examples. So herbarium, botanical gardens, zoological parks, museum, and finally key. So these are the examples of taxonomical aids. Okay, so we will be discussing about all this as well in today's session. Fine. Okay, chalo. So let's get started then. Very first, what do you mean by taxonomical aids, right? Now here, aids, it means help. है ना? AIDS aids over here, it means to help. So taxonomical aids. So these are the things which help in taxonomy. Now you will say, what is taxonomy? So basically, taxonomical studies or taxonomy, it's a study which is used to identify and to know more about different living organisms. Correct? There are special people who do it. They are trained, right? They have degree to study all these things, and they are known as taxonomists. Correct? They are practically trained to do so. And what do we call them? Those scientists are known as taxonomists who are dedicated to this work. So I repeat, taxonomy is the study of identification and to know more about different living organisms. It could be plants, microorganisms, animals, etc. And of course, we all know that these organisms are useful for us. Correct? In some way or the other, we humans, we are dependent on all other living organisms which are present on this earth. Correct? You all will agree with me. We are dependent on plants, we are dependent on animals, and of course, there are some good microorganisms as well on which we are dependent. So, अगर हम रहे ना रहे उनको फर्क नहीं पड़ता. That's the bottom line. But if plants, animals, microbes are not there, insects are not there, then obviously humans won't be able to survive on this planet Earth. So they are very, very important, and therefore we should know. Humans keep on striving, है ना? हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास चलता रहता है कि to know more about them, to know more about these living organisms, which will in some way or the other help us. Correct?
So, taxonomical aids are the things which help us to know more about the species of plants, animals, and other organisms. Now, all of them, they are useful for us in various things. For example, agriculture. Correct? Plants are useful in agriculture. Agriculture क्या है? Farming. है ना? Wherein different food crops are grown. अच्छा, ये food crops जो grow होते हैं, we eat them. Understand? They are for us. We get nutrition, we get food from the agriculture. So that is most important thing. You know, all food crops, all plants, they are very, very important. Animals are also used, to carry out agricultural process. So they are also important. Forestry, different forests. From forests also we get so many things. There are animals there are trees there, we get wood which is used in paper industry. We get so many other materials as well from the tree trunks, right, from the trees. So forestry is very important. Industry, correct. Now there are various industries which make use of different plant products. For example, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे क्लोथ्स बनते हैं. सो पेंट्स एंड डाइज, है ना, कलरफुल क्लोथ्स अच्छे लगते हैं ना सबको पहनने के लिए. सो द कलर, that is the pigments which are used, to make clothes. Many of them, they are obtained from plants. The source is plant. Understand? So paper industry, textile industry, food industry, wherein different food items are processed and made. Chemical industries, so pharmaceutical industries wherein medicines are made. So in many of these industries, plant sources, okay, plant parts or the chemical compounds or substances obtained from plants are used. Correct. So it plays a very important role in agriculture, forestry, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. जो कि मैंने सबसे पहले कहा है ना, bioresources मतलब all the living resources from which we get something. We humans, we get something, we get so many different things from all the living resources, plants, animals, microorganisms, and in our day-to-day life also we use them, and we are alive. In fact, we survive because of them. तो उसको bioresources कहते हैं. And we also come to know about their diversity. Diversity means what? See, many different plants are present on the earth. Many different species of plants. There are herbs, there are shrubs, there are huge trees. Correct? वो trees में भी कितने सारे variety है. Animals में कितना सारा variety है. Correct? We all know that. We have mammals, we have reptiles, we have aquatic animals, terrestrial animals, as per the habitat. So there are different varieties of animals. We have birds, insects, microorganisms में कितना सारा variety है. Protozoans, bacteria, viruses, some are good, some are bad. Understand? This whole thing is known as diversity. ठीक है? चलो. So these studies would definitely require correct classification and identification of organisms. If we are able to identify the organisms correctly, only then we will be able to study about them correctly. ठीक है? Let's move further. Biologists, they have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. So we are going to learn about, in short, these procedures or techniques or how they are preserving the information in the specimen format. So that is what we are going to learn further in this chapter. Okay? So one by one, these taxonomical aids we will learn. Okay? So let's start with the first one. The first one, as you can see, is herbarium. What is herbarium? Basically, listen carefully. I'll tell you what is herbarium. These are plant specimens, and of course, herbarium can be made only using small plants or parts of plants. You cannot make herbarium of a huge tree. Big trees, you cannot make a herbarium of it. But yes, small plants and parts of plants, you can definitely make the herbarium. So when a plant is small, you cannot wait till it grows into a huge tree and then think of making the herbarium. That's not possible. But yes, when it is small, you can definitely make. So basically what is done is, plants are collected, right? Any plant species is collected. It is dried completely.
देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ड्राई इट. सन ड्राइंग मतलब बस सन में उसको रख दो. Sun drying, then shadow drying is done, and nowadays there are vacuum dryers. There are certain ovens. अपना घर में जो oven होता है वो वाला नहीं, ठीक है, wherein we cook. I'm not talking about that oven. That is different. Okay, these ovens, they are specifically used in laboratories. There are vacuum dryers. There are these ovens which are used to dry the plant parts or small plants. ठीक है. तो सन ड्राइंग, शैडो ड्राइंग या ड्राइंग यूजिंग सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वैक्यूम ड्रायर और एज आई सेड सर्टन ovens, plants can be dried completely. Dry करना मतलब क्या exactly? We are supposed to remove moisture in it. That is drying. Because if you want to, we are making herbarium to preserve plants for a longer period of time. है ना, हमको प्लांट्स को प्रिजर्व करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए हम हर्बेरियम बना रहे हैं. करेक्ट. सो इफ देयर इज मॉइस्चर इन इट, देन डू यू थिंक वी विल बी एबल टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड? नो, वी वोंट बी एबल टू प्रिजर्व इट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. क्योंकि मॉइस्चर, बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर द प्लांट्स they will start decomposing, right? Contamination will take place and we won't be able to preserve it. Therefore, the very first step is collection of plants, of course, जिसका आपको herbarium बनाना है. Secondly, you will dry it completely using so many techniques that are available. Different plants will take different times, yeah, different duration, okay, for drying. Different plants will take different time or different duration for complete drying. That's because the moisture content present in different plants is different, right? The moisture content present in different plants is different. I hope you agree this. Some plants have less amount of moisture, right, in them, so they will get dried faster. Let's say 3 to 4 days or 1 week. But some plants have more amount of moisture in them, so such plants will definitely take some more time to dry. It could be 2 weeks, right, up to 2 weeks or 3 weeks or a month. It depends on the moisture content of the plant. Point is, you have to completely dry it. Not even the small traces of water or moisture should remain in the plant. Okay? Okay. Then what is done is, you take this dried plant and you mount it on a sheet of paper. Now this sheet of paper, उसको herbarium sheet भी कहते हैं. It is easily available in the stationery shops. You just have to tell them, मुझे herbarium sheet दे दो. Stationery shop people, and they will give you. They know about it. So it's a white color paper, neither too thin, neither too thick. Medium thickness का होता है. उसके dimensions वगैरह भी आगे मैंने डाले हैं स्लाइड में. उसका एक specific dimensions होते हैं, length and breadth, and you just have to mount your plant specimen which you have dried on it. ठीक है. अच्छा, before that, again there is one more step which is done before mounting it on the paper. What is done is, you can this is done for drying. ये भी एक ड्राइंग का ही टेक्निक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. What you can do is, अगर आप घर में हो, let's say, and if you don't have the chance to go outside and dry the plant in sun, okay, आप sun dry या फिर shade drying, या इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है आपके पास, सन ड्राई भी नहीं कर सकते, शेड ड्राइंग भी नहीं कर सकते. लेट्स से बारिश का मौसम है, आप घर में हो, या एनीथिंग, बारिश का मौसम नहीं भी है, लेट्स से, बट यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग्स दी अदर वेज विच आई टोल्ड. तो आप कैसे ड्राई करोगे, है ना? लेबोरेटरी में कैसे ड्राई किया जाता है. मेनी अ टाइम्स दिस प्रोसीजर्स आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज एज वेल. इवन यू कैन डू इट एट योर होम. क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स लेते हैं, ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर्स हमारे घर में पड़े हुए रहते हैं. तो न्यूज़पेपर्स के बीच में, है ना, ऊपर न्यूज़पेपर नीचे भी न्यूज़पेपर, उसके बीच में ये प्लांट स्पेसिमेन को डाला जाता है, ठीक है. एंड उसके ऊपर आप नीचे भी न्यूज़पेपर है, ऊपर भी न्यूज़पेपर है, एंड द प्लांट स्पेसिमेन इज इनसाइड इट. आई बात समझ में? तो लेट्स से
ये न्यूज़पेपर्स है, ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, और इसके बीच में मैंने प्लांट स्पेसिमेन डाल दिया। फिर इसके ऊपर ना वेट्स रखे जाते हैं। यू कैन कीप एनीथिंग एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू प्रेस इट प्रॉपरली। सो समथिंग अ वेट, एक भारी भरकम चीज आप कुछ भी रख सकते हो। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रेशर। तो उससे क्या होता है, इट विल हेल्प इन रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम दैट प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, तो द न्यूज़पेपर and this pressure, it will help in removing the moisture from that plant specimen. And every day you have to change that newspaper, correct? And again keep it, as I said, for as many days कि जब तक वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। बट रिमेंबर, एवरी डे यू हैव टू चेंज द न्यूज़पेपर एंड केयरफुली यू हैव टू डू दिस टेक्निक। ठीक है, ब्रेक ना हो, टूटे ना, यू हैव टू टेक दीज केयर। अब इससे क्या होगा, आप घर पे या लेबोरेटरी में भी प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी किया जाता है। एंड वंस इट इज कम्प्लीटली ड्राइड, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू माउंट इट ऑन दी हर्बेरियम शीट। तो अभी हर्बेरियम शीट पे माउंट करने के लिए क्या करते हैं, यू कैन यूज स्टिच, है ना, थ्रेड एंड नीडल। जैसे हम कपड़ों को स्टिच करते हैं तो वैसे ही आप थ्रेड एंड नीडल लेके स्टिच कर सकते हो वो प्लांट को, उसकी स्टेम। यू टेक अ हर्बेरियम शीट, आप वो प्लांट रख दो बीच में, सेंटर में, है ना, एंड उसके जो स्टेम है तो ऊपर एक स्टिच डाल दो टुवर्ड्स द टॉप, फिर एक सेंटर में एक स्टिच डाल दो अच्छे से, और एक एंड की तरफ एक स्टिच डाल दो। उससे क्या होगा, दैट प्लांट स्पेसिमेन विल गेट फिक्स्ड onto the herbarium sheet, है ना, वो निकलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। you have to take care of that. And you can also make use of फेविस्टिक, है ना, फेविस्टिक या any kind of other product just like फेविस्टिक, फेविकॉल, कोई भी, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। एंड उससे क्या करना है, उससे भी उसके जो लीव्स होते हैं, फ्लावर्स अगर है आपके पास तो फ्लावर्स, लीव्स, तो वो आप स्टिक कर सकते हो। हाँ, स्टिक करने के लिए नॉर्मल हम जैसे स्टिक करते हैं वैसे ही, लीफ के पीछे लगाने का थोड़ा फेविकॉल या फिर पेपर पे लगाने का, दैट्स बेटर। एंड बस आप हल्के हाथ से लीफ को उस पर दबा दो एंड इट विल गेट स्टक। So this is how you make use of Fevicol, Fevistick या फिर needle and thread to mount the herbarium plant on herbarium sheet. ठीक है, I hope this is clear. And that's it. और एक बात, very important part, उसको ना लेबल लगाया जाता है। I will talk about this in my further slides so that आपको pictures भी दिखाऊंगी मैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो। So यहाँ पे अभी मैंने आपको इतना सारा हर्बेरियम के बारे में बता दिया। आई होप नाउ यू नो व्हाट इज हर्बेरियम। उसका डेफिनेशन यहाँ पे है, वो भी देख लेते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स। Okay, you are drying it, we are drying it, we are collecting a normal plant but we dry it, we press it. Okay, that how it is done I already explained you. So it's a collection of dried and pressed plant arranged according to a classification system, and it is available for study or reference, and it is known as herbarium. ठीक है, it is available for study or reference. Understand, आपने herbarium बनाया, क्यों बनाया? Of course we are preserving it, we are preserving the plant specimen. So you can make many herbariums, as many as you want. You can keep them all in a library. जैसे बुक्स का लाइब्रेरी होता है ना, वैसे ही सिमिलरली हर्बेरियम का लाइब्रेरी होता है। एक होगा तो हर्बेरियम, अगर प्लूरल है तो हर्बेरिया। सो डिफरेंट हर्बेरियाज दे आर प्लेस्ड इनटू द हर्बेरियम लाइब्रेरीज, दे आर केप्ट देयर। एंड अगर आपको उन प्लांट्स को देखना है या उनके बारे में जो भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट सर्टेन प्लांट्स, यू कैन गो टू द हर्बेरियम लाइब्रेरी एंड यू कैन सी दैट स्पेसिमेंट्स। तो बेसिकली स्टडी रेफरेंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं ये प्रिजर्व्ड हर्बेरियम्स को, ये हर्बेरियम लाइब्रेरी में जाके। स्टूडेंट्स यूज इट, रिसर्चर्स यूज इट, साइंटिस्ट यूज इट, दोज हु वांट टू नो मोर अबाउट इट एंड गेन मोर नॉलेज अबाउट इट। तो रेफरेंस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी बात, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। वो तो मेन है, जैसे कि अननोन प्लांट है, आप कहीं पे जा रहे हो और आपको एक अननोन प्लांट, एक आपको प्लांट स्पीशीज दिखाई दिया एंड यू गॉट वेरी अट्रैक्टेड एंड फैसिनेटेड, आपको अच्छा लगा, बट आपको नहीं पता वो कौन सा प्लांट है, यू डोंट नो।
या आप पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो और आप ऐसे प्लांट कलेक्शन के लिए चले गए, वहाँ पे भी आपको प्लांट्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन से प्लांट्स हैं। तो इन दैट केस आप उसको घर लाओ या लैब में लाओ, कॉलेज में उसका हर्बेरियम बनाओ एंड वो हर्बेरियम बना के देर आर यू सेंड इट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस कि उनको अगर आपने हर्बेरियम भेज दिया तो वो क्या करेंगे, दे स्टडी दैट हर्बेरियम, दे स्टडी दैट प्लांट एंड काफ़ी सारे उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड उनको जो भी ऑब्जर्वेशंस या रिजल्ट्स मिलते हैं वो अपने डेटा के साथ वो कंपेयर करते हैं। दे ऑलरेडी हैव वर्कड ऑन एंड टेस्टेड सो मेनी प्लांट्स, राइट? दे हैव बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स आर ऑलरेडी पब्लिश्ड। जिन जिन प्लांट्स पे बहुत सारे एनालिसिस या टेस्ट हुए हैं, केमिकल एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, है ना, तो ऑलरेडी डेटा इज अवेलेबल, उनके ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स, एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल, उनके बारे में सब कुछ। बहुत सारे प्लांट्स हैं ना जिनको ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन हो गया है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी है ना, रिसर्चर्स ने ही काम करके किया है। सो देर आर बुक्स, है ना, देर इज डेटा अवेलेबल, देर आर बुक्स फॉर दैट, स्टैंडर्ड बुक्स है। तो वो उनके पास होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो वो क्या करेंगे, आपने जो भी उनको अननोन हर्बेरियम भेजा है, दे विल स्टडी इट अपने रिकॉर्ड्स में, अपना उनके पास जो भी बुक्स या डेटा अवेलेबल है उसके साथ कंपेयर करेंगे। उससे उनको पता चलेगा कि वेदर वो जो प्लांट स्पेसिमेन आपने उनको दिया है वो सच में न्यू है या ऑलरेडी इट इज़ देयर एंड उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। तो अगर ऑलरेडी इफ द प्लांट इज नोन और उसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह हुआ है तो उनको वो रिजल्ट्स अपने रिकॉर्ड्स में मिल जाएंगे। और अगर नहीं है कहीं पे भी, दैट मीन्स कि आपने एक नया प्लांट डिस्कवर किया, करेक्ट, यू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट। तो या तो दो चीज़ें होती है, अगर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, उसके बारे में डेटा है, तो आपको पता चलेगा, तो वो आपको वो रिपोर्ट बना के, सर्टिफिकेट बना के भेज देते हैं कि ये देखो भाई, आपने जो हमें प्लांट भेजा था हर्बेरियम बना के, सो दिस इज दैट प्लांट। उसका एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि ये प्लांट है और उसके सारे डिटेल्स उसमें लिखे होंगे, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो विच मीन्स यू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट। आई बात समझ में? तो उसके लिए भी फिर आगे प्रोसेस होता है कि वो साइंटिस्ट को बताया जाता है एंड फिर वो उसको नया जीनस वो देखेंगे। स्टडी तो ऑलरेडी किया हुआ है उन्होंने, फिर कौन से फाइलम या जीनस में डालना है दे विल सी एंड नया नाम देंगे उस स्पीशीज़ को, वगैरह नया नाम देते हैं। बेसिकली a new plant species would be discovered and the scientists or the concerned people involved they will give the name to it, ठीक है। तो ये बात होती है। So herbaria are used to identify the plant species as well as to preserve the plant species so that they can be used for reference or study purpose. The name first was applied by Linnaeus scientists. These specimens may be whole plants or plant parts and these will usually be in a dried form and mounted on a sheet, which I already told, है ना, वहाँ पे कुछ pictures, images दिखाए हैं। ये important है, मैंने बोला ना, it is pressed, treated, mounted on a standard size sheet in order to preserve it. Standard size क्या है herbarium sheet का? 42 into 29 centimeter size, length and breadth. This is not given in your books, but this is important. They may ask this in entrance exams, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है, याद रखना। करेक्ट। अब ये आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो। आई हैव मैंने कुछ इमेजेस पेस्ट किए हैं यहाँ पे, आई होप यू कैन सी, है ना। वहाँ पे वो प्लांट स्पीशीज है, उसके रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, फ्लावर भी है एंड दे हैव माउंटेड इट, करेक्ट। एंड आप देख सकते हो वहाँ पे एक लेबल है कॉर्नर में, राइट, अ लेबल इज देयर एंड दिस लेबल लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे, है ना, लेफ्ट साइड में लोअर कॉर्नर में देर इज अ लेबल एंड दिस लेबल इज कंपल्सरी। You can see the size of the label as well, 11 centimeter to 7 centimeter, ये भी याद रखना। And then some important details are written over there. अगर आपको पता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, करेक्ट। आपको नहीं पता तो जो भी आपको पता है, जितना भी है ना, that you may write there, जैसे कि नंबर, डेट ऑफ कलेक्शन,
वो तो लिख सकते हो। अगर नेम ऑफ द प्लांट पता है लिख दो, वरना डैश कर दो। फैमिली हैबिटेट पता है तो लिख दो, वरना डैश कर दो। लोकेलिटी में क्या लिखना है कि कहाँ से मिला आपको, कहाँ से कलेक्ट किया आपने, वो नाम लिखना है। ठीक है। ऑल्टीट्यूड पता है उस एरिया का, आजकल तो इंटरनेट पे सब पता चलता है। मुझे लेट से संगमनेर में एक प्लांट स्पीशीज मिला उस कहीं पे, तो संगमनेर लिख दूंगी। अभी फिलहाल संगमनेर में ऑल्टीट्यूड कितना है डाल दिया तो वो भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इफ़ यू नो यू कैन पुट, और जस्ट लीव दैट ब्लैंक। रिमार्क्स में अगर आप और कुछ लिखना चाहते हो वो प्लांट के बारे में जो आप देख रहे हो, तो सम क्वालिटीज विच में हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, इफ इट्स अननोन, आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हो वहाँ पे। एंड देन कलेक्टर्स साइन, मतलब आपका नाम और आपका साइन वो वहाँ पे आएगा। तो अननोन है, आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप वो ऑर्गेनाइजेशंस में भेजते हो, करेक्ट। जैसे कि अपने महाराष्ट्र में देर इज अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ इन पुणे। ठीक है। तो वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हर्बेरियम अगर आपने उनको भेजा, then they will identify and they will give you the authentic report। अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट या सर्टिफिकेट आता है वो ऑथेंटिक होता है, करेक्ट। सो बहुत सारे एमएससी करने वाले बच्चे, पीएचडी करने वाले बच्चे या रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, दे टेक हेल्प ऑफ इट। Again, this is one important slide. These are some famous herbaria of the world. हाँ, अब ये ना इसमें से कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछते हैं, जैसे कि द रॉयल बॉटनिकल गार्डन, दे हैव लार्जेस्ट हर्बेरियम, वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज प्रेजेंट इन डैश, और फिर ऑप्शंस देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम्स में, सो आई थॉट टू पुट इन दिस स्लाइड। रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स जिसमें लार्जेस्ट हर्बेरियम है, इट्स इन क्यू सिटी विच इज़ इन लंडन, एंड लाइब्रेरी ही है पूरा वहाँ पे। नंबर ऑफ हर्बेरियम स्पीशीज कितना है उस लाइब्रेरी में, 6.5 मिलियन। सोचो इतने सारे हर्बेरियम ऑलरेडी अवेलेबल है। देन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विच इज़ इन पेरिस, ओवर 6 मिलियन हर्बेरियम। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, न्यूयॉर्क इज इन यूएसए, 4.0। तो यू कैन सी दैट, हाँ यू कैन रीड इट। फिर वहाँ पे अपना कुछ है क्या, यस अपना है, देखो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम विच इज़ इन सिद्धपुर, इट्स इन कोलकाता, इंडिया, 2 मिलियन हर्बेरियम है। Then Madras Herbarium, it's in Coimbatore, India, 1,50,000. National Botanical Research Center, NBRI कहते हैं उसको, which is in Lucknow, India, of course, 80,000 herbarium are there. अब ये डेटा थोड़ा पुराना है, तो अभी ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ गया होगा, द नंबर थोड़ा बढ़ गया होगा। ठीक है, चलो, दिस इज द हर्बेरियम लाइब्रेरी। मैंने कहा ना, दिस इज जैसे बुक्स का लाइब्रेरी होता है वैसे हर्बेरियम का भी लाइब्रेरी होता है, तो आई थॉट ऑफ शोइंग यू द पिक ऑफ इट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हर्बेरियम, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, एंड व्हाट आर द यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ हर्बेरियम। ठीक है, चलो, सो आई हैव डन दिस during my MSc, during my PhD, I have made herbarium. In fact, I was a professor in college, Khalsa College. I have taught MSc students as well. तो उनको मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी है कि कैसे हर्बेरियम बनाते हैं। वी यूज्ड टू गो ऑन बॉटनिकल, वी यूज्ड टू गो ऑन ट्रिप्स, स्टडी टूर्स। तो वहाँ पे हम प्लांट कलेक्शन करते थे, वो लेके आते थे कॉलेज में, एंड उसको फिर साफ क्लीन करते थे, मिट्टी वगैरह सब हटा के, सॉइल हटा के उसको प्रॉपर ड्राई करते थे, एंड देन द प्रोसीजर विच आई टोल्ड यू। सो वी ऑल यूज्ड टू एन्जॉय दिस, हम सब ने ये किया हुआ है, मैंने और मेरे स्टूडेंट्स में, एंड बिलीव मी ये बहुत मज़ा आता है जब आप साथ मिल के हर्बेरिया प्रिपेयर करते हो। आई होप यू ऑल्सो गेट द चांस टू डू सो। प्रैक्टिकली कोई भी आप चीज़ जब करते हो तब और मज़ा आता है, और उसके बारे में और आप समझ पाते हो, राइट? All students who are watching this video, they will definitely agree with what I'm saying. चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज बॉटनिकल गार्डन्स। ये तो भाई बहुत ही सिंपल है, मैंने एक इमेज भी डाला है। आई होप यू ऑल हैव विजिटेड बॉटनिकल गार्डन, कभी ना कभी किसी बॉटनिकल गार्डन में गए होंगे। अगर नहीं गए हो तो प्लीज़ जाना, है ना, प्लीज़ गो। तो बॉटनिकल गार्डन मतलब क्या, ओवर हियर plants of different varieties from different parts of the world are planted. They are grown in a scientific and systematic way in vivo. In vivo मतलब बाहर, है ना, बाहर, ये लैब में नहीं है, अब ये बाहर है
है ना. सो उसको इन वीवो कहते हैं. सो वेरियस प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स आर कलेक्टेड एंड दे आर ग्रोन इन अ साइंटिफिक वे, है ना. उनको बस ऐसे नहीं रैंडमली छोड़ा जाता, साइंटिफिक वे में ग्रो करते हैं. उनको क्या फर्टिलाइजर्स चाहिए, कितना पानी चाहिए, व्हाट फूड न्यूट्रिएंट्स दे रिक्वायर, एवरीथिंग द केयर इज टेकन ऑफ. दे the people who look after them, they see whether they should not get infected, या they should not get any diseases. If at all they found out कि कुछ infections या diseases हुए हैं, then तुरंत the care is taken. You can see here a label board. It shows scientific and common name of the plant. So botanical garden में basically जो भी plants होते हैं छोटे बड़े, तो उसमें उनका नाम लिखा हुआ रहता है like this. So this example I have shown, scientific name is written and common name is also written. जैसे कि ये है Ficus elastic. It is nothing but rubber. अपना normal rubber या rubber का plant है, इस plant से rubber is obtained. ठीक है. एंड अगर कोई कोई बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं तो उनका भी ऐसे बड़े बड़े फिर बड़े लेबल्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े. एंड उसमें क्या क्या होता है आई टेल यू. उसका साइंटिफिक नेम, उसका कॉमन नेम, देन उसके यूजेस, है ना, उसके एप्लीकेशंस, मेडिसिनल एप्लीकेशंस या मेडिसिनल यूजेस, या वो प्लांट कितना पुराना है, एनीथिंग 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 गुड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. हाँ, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है ना. साइंटिफिक नाम और कॉमन नाम तो होगा ही होगा. इसके अलावा वो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के, सो उसके यूजेस, एप्लीकेशंस, वो सब लिखा हुआ रहता है. ठीक है, चलो. द नेक्स्ट पार्ट इज म्यूजियम. अब म्यूजियम भी आई होप आप लोगों कभी ना कभी किसी न किसी म्यूजियम में गए होंगे. अगर नहीं तो प्लीज़ डेफिनेटली जाओ, डू विजिट. म्यूजियम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब काफ़ी अलग अलग म्यूजियम्स होते हैं. एजुकेशनल म्यूजियम्स है, देन विच हेल्प स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. उसके अलावा हिस्टोरिकल म्यूजियम्स होते हैं. अभी हिस्टोरिकल म्यूजियम्स में पुराने 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 ज़माने के किंग एंड क्वीन, तो उनका उनका जो भी वो पहनते थे, वॉट एवर दे यूज टू वेयर इन दोज टाइम्स, सो उनके क्लोथ्स आर बीन केप्ट. और द स्वर्ड्स, है ना, जिससे वो वॉर पे जाते थे, तो दो स्वर्ड्स, ओरिजिनल स्वर्ड्स, ओरिजिनल क्लोथ्स दैट वर वन बाय दीज किंग्स एंड क्वींस, और दी ज्वेलरी, or the swords or other instruments that they might have used during their time. तो पुराना सब सेंचुरीज पुराना, तो वो सब रखा हुआ है म्यूजियम्स में, हिस्टोरिकल म्यूजियम्स में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया. हर एक कंट्री का अपना अपना हिस्ट्री है, अपना अपना म्यूजियम है जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी हुई है. सो यू कैन जस्ट गो इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना, टू सी समथिंग न्यू एंड टू लर्न. आप ऐसे ही जाके देख सकते हो. बहुत सारे म्यूजियम्स हैं. ठीक है, तो गुजरात में गांधी जी का म्यूजियम भी है एक, तो वहाँ पे उनका सब उनके वॉट एवर ही यूज टू वेयर, उनका चरखा जिस पे वो काम करते थे, बहुत सारी चीज़ें, उनके बुक्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है. तो यू कैन गो एंड विजिट. एज आई सेड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स. हियर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, which are set up in educational institutes mostly, such as schools and colleges. Museums में क्या होता है, they have collections of preserved plant and animal specimens. ना, preserved plant specimens preserve किए जाते हैं, animal specimens preserve किए जाते हैं for students to study, है ना. तो वो जो एजुकेशनल म्यूजियम्स है उनकी हम बात कर रहे हैं. Specimens are preserved in containers or jars. कैसे प्लांट स्पेसिमेंस है, कैसे प्रिजर्व करते हैं, इन सम कंटेनर्स और इन जार्स, एंड सम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस आर यूज्ड, सच एज फॉर्मेलिन, है ना. 10% फॉर्मेलिन, इट्स अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन विच इज यूज्ड. फॉर्माल्डिहाइड इन वाटर, ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड इन वाटर गिव्स यू फॉर्मेलिन, सो 10% फॉर्मेलिन इज यूज्ड. मैनिटॉल इज यूज्ड. ऐसे और भी सारे हैं, बट ये कॉमन है जो यूज किए जाते हैं. Then plant and animal specimens may also be preserved as dry specimens. ठीक है, तो ड्राई स्पेसिमेंस करना है तो मैंने अभी बोला आपको, हर्बेरियम का एग्जाम्पल दिया. एनिमल स्पेसिमेंस को कैसे करेंगे, ऑफकोर्स उनके डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता है.
तो बेसिकली एनिमल्स को ना उनके अंदर का सब निकाल के करते हैं ये ऐसे भी कुछ एट सम प्लेसेस, या फिर सम प्लेसेस पे नहीं भी करते. बेसिकली व्हाट इज डन इज विथ व्हेन इट कम्स टू एनिमल स्पेसिमेंस, they stuff inside the dead bodies of animals. They stuff, एक तो preservative solutions में तो रखा ही जाता है. Apart from that, वो तो मतलब कुछ जैसे कि हाइड्रा वगैरह है, हाइड्रा एक्वाटिक उसको प्रिजर्व करने के लिए वो है, और बाकी जो टेरेस्ट्रियल है उनको प्रिजर्व करने के लिए ये ड्राई मेथड्स यूज करते हैं. बेसिकली उनकी बॉडी में है ना ड्राई ग्रास स्टफ किया जाता है या कॉटन स्टफ किया जाता है. आई बात समझ में? तो ऐसे कुछ मतलब न्यूट्रल चीज़ें स्टफ की जाती है उनकी एंटायर बॉडी में, एंड सो दैट and they are dried of course, so that they remain degeneration ना हो, decompose ना हो उनकी body, they remain dry and thus they have been preserved. ठीक है, तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया. इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स, तो थोड़ा अलग अलग तरीका. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द चैट बॉक्स. आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स. ठीक है, तो चलो हर्बेरियम देख लिया, बॉटनिकल गार्डन्स देख लिए, कमिंग टू जोलॉजिकल पार्क्स. जैसे बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट्स होते हैं वैसे जोलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स होते हैं. सिंपल है ना. एंड जोलॉजिकल पार्क को ही शॉर्ट में हम जू कहते हैं. आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट. जू तो सबको पता है ना. आई होप कि आप गए हो कभी ना कभी किसी ना किसी जू में. देखो मैंने तो हर्बेरियम बनाया है. I have visited several botanical gardens. I have also visited zoological parks. हाँ, तो I will definitely request you all to visit these places. आपको बहुत मज़ा आएगा एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. प्रैक्टिकल लाइफ से आप जितना सीख सकोगे. बुक्स में तो ठीक है हम पढ़ते ही हैं, बट आई गारंटी यू कि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हो तो वो और अच्छी तरह से आप सीखोगे. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू लर्न फ्रॉम ऑब्जर्विंग वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, तो वो जो लर्निंग्स है ना वो आप कभी भूलोगे नहीं. यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. ठीक है, और एक मेमोरीज होती है व्हेन यू विजिट सच प्लेसेस विच यू विल चेरिश. ओके चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट जोलॉजिकल पार्क्स. एज आई सेड यहाँ पे एनिमल्स आर केप्ट. अब क्या है ना, आप बोलोगे कि नेचुरल तो प्लांट्स होती है ना, नेचुरल उसके फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ, एनिमल्स भी नेचुरल फॉरेस्ट में होते हैं, तो क्यों उनको बॉटनिकल गार्डन में लाया गया प्लांट्स को, क्यों एनिमल्स को यहाँ पे लाया गया? तो पॉइंट ये है, इनिशियली प्लांट्स की भी अगर हम बात करें तो समटाइम्स इन द वाइल्ड द प्लांट्स मे नॉट गेट all the things that they require, or plants may not get enough nutrients to grow and develop properly. They may not get proper environmental or favorable conditions. If they get infected, then there is nobody to take care of them. आई बात समझ में? तो the same applies for animals. Understand? They are there in the forest, but कितनी बार ऐसा होता है कि some animals do not get even food or water. They do not have, if they get infected or disease, there is nobody to take care of them. They'll die due to lack of food, water, या infection, disease, है ना. We don't want that to happen. So intention, सबसे पहले जब botanical gardens या zoological parks बनाए गए थे, the intention behind it was to preserve this species of plants और ऑफ एनिमल्स. इसीलिए उनको ऑल ओवर दी वर्ल्ड कलेक्ट किया गया एंड ऐसे काफ़ी सारे जगहों पे, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में उनके बॉटनिकल गार्डन्स या जोलॉजिकल पार्क्स बनाए गए विथ प्योर इंटेंशन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एंड प्रिजर्विंग देम. ठीक है, ये ना हो कि कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए. हाँ, तो ये प्योर इंटेंशन था उसके पीछे का. बट देन लेटर ऑन थोड़ा वो कमर्शलाइजेशन हो गया. मतलब नाउ पीपल विजिट, है ना, देर आर टिकट्स
अब इतना महंगा भी नहीं होता, बट देर आर यू हैव टू पे सम अमाउंट एंड यू हैव टू टेक टिकट्स एंड देन यू कैन विजिट दिस बॉटनिकल गार्डन्स एंड zoological पार्क्स. अच्छा, सब जगह पे टिकट्स है ऐसा भी नहीं है. सम ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन जस्ट विजिट देम. बट टिकट्स क्यों रखते हैं मुझे लगता है रखना चाहिए, ताकि हम गंदगी नहीं करेंगे वहाँ पे जाके. वरना लोगों को तो आदत है ना, कहीं पे भी गए बस खाओ पियो, रैपर्स फेंको, बॉटल्स फेंको और सब गंदगी करके आते हैं हम लोग. सो अगर टिकट रखेंगे तो पीपल विल, एंड फाइन रखना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ फाइन रखना चाहिए. एंड पीपल शुड बी अलॉटेड ओवर देयर, वॉलंटियर्स शुड बी देयर, सब लोगों पे ध्यान रखने के लिए, ताकि आप कुछ भी खा के चिप्स खा लिए, पैकेट फेंका, फेंक दिया, तो ऐसा आप ना करो. बिकॉज वी डोंट वांट दैट. हमें गंदगी नहीं करनी है, राइट. वी हैव टू कीप दिस प्लेसेस सेफ, हाइजीनिक एज फार एज पॉसिबल, राइट, सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव हैप्पीली देयर. अपने घर में हम कचरा करके उसमें रहते हैं, नहीं. तो वैसे ही वो जगह है, वी डोंट हैव टू यू नो मेक देम डर्टी. वी शुड नॉट डू दैट. ठीक है, चलो. तो स्पेशलाइज प्लेसेस वेयर लिविंग एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर. ये साइंटिफिक डेफिनेशन हो गया. एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी मैंने दे दिया. नेशनल जोलॉजिकल पार्क दिल्ली का एग्जाम्पल है, ये पिक्चर है. ऑल एनिमल्स इन दिस जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स. और ये जू वाले केयर करते हैं, वो देखते हैं कि जितना पॉसिबल हो उतना सेम कंडीशंस रखे वो एनिमल्स के लिए जो उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको मिलता. सो एज फार एज पॉसिबल दे ट्राई टू मेंटेन दैट, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनको ऐसा ना लगे कि हम पता नहीं यार कहाँ पे आ गए, उनको ऐसा ना लगे. Now these are some famous zoos of India. National Zoological Park is in Delhi, Nandankanam Zoo, Odisha, Nehru Zoological Park, Hyderabad. So you can just go through these examples. I have visited Mysuru Zoo, which is in Karnataka. I have been to Rajiv Gandhi Zoological Park, which is in Pune. Yes, ये दो तो हम गए हैं. Okay, चलो. Next, move on to next taxonomical aid, biodiversity parks. बायोडाइवर्सिटी पार्क्स क्या है? अब यहाँ पे जैसे बॉटनिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट्स होते हैं, zoological पार्क्स में सिर्फ एनिमल्स होते हैं, करेक्ट. बट बायोडाइवर्सिटी पार्क्स ऐसे हैं कि जहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी केप्ट. प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग कैन बी केप्ट. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि प्लांट्स ही हो या एनिमल्स ही हो. तो उसको बायोडाइवर्सिटी इसीलिए नाम दिया है ना. डाइवर्स एनिमल्स है इसीलिए डाइवर्सिटी, या डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है ना, इसीलिए एंड लिविंग, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी पार्क नाम दिया गया है. इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीशीज, मतलब सारे अपने एनवायरनमेंट से, इकोलॉजी से मतलब एनवायरनमेंट से अलग अलग स्पीशीज को कलेक्ट करके आप वहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हो. फ्रॉम सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी, इट फॉर्म्स सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज. तो बायोडाइवर्सिटी पार्क में जब आप कोई भी स्पीशीज को लाते हो, रखते हो, तो सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज बन जाती है. मतलब दैट कम्युनिटीज कैन सर्वाइव, दे कैन स्टे, दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन. एंड सब फर्क क्या है? मेन फर्क ये है कि बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन डिग्रेडेड और बेरन लैंडस्केप. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड फर्क है बिटवीन बॉटनिकल गार्डन्स और जोलॉजिकल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क्स. आई बात समझ में? बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर मेड ऑन डिग्रेडेड और बैरन लैंडस्केप. मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डिग्रेडेड और बैरन लैंडस्केप मतलब क्या? डिग्रेडेड मतलब कि जहाँ पे काफ़ी साल, डिग्रेडेड या बैरन दोनों का मतलब एक ही है कि उस लैंडस्केप पे काफ़ी साल से कुछ नहीं प्रोड्यूस हुआ है. ओके, नो प्लांट्स हैव प्रोड्यूस्ड ओवर देयर. कुछ भी नहीं, ना प्लांट्स थे, ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, वी नेवर नो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, लेकिन वहाँ पे भी उनको फूड मिलना चाहिए तभी वो वहाँ रहेंगे. तो बेसिकली डिग्रेडेड या बैरन लैंडस्केप इज जहाँ पे कोई नहीं था, ना प्लांट्स, ना एनिमल्स, नथिंग. हाँ, इट इज़ जस्ट, उसको कहते हैं डिग्रेडेड या बैरन लैंडस्केप. फॉर मेनी ईयर्स इट वॉज लाइक दैट, मेनी ईयर्स इट वॉज लाइक दैट. तो उसको, ये डिग्रेडेड या बैरन लैंडस्केप को अच्छा बनाया जाता है बेसिकली.
बाय एडिंग उसको वाटर करके उसमें पानी वाटर किया जाता है, वाटर दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स अगर काफ़ी सारे डाले जाते हैं उस सॉइल में, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, एंड दिस इज़ डन फॉर फ्यू मंथ्स, है ना। एंड अदर यूजिंग अदर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स उसको बेसिकली एक अच्छा फील्ड बनाया जाता है, अ गुड क्वालिटी फील्ड में उसको कन्वर्ट किया जाता है इस बैरन लैंडस्केप को, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे you can start bringing different species, हाँ, तो उसको बायोडाइवर्सिटी पार्क कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क विच इज इन गुरेगर महाबलेश्वर। यहाँ पे मैंने पिक्चर डाला है, बट ये भी लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क है, बट ये अकोला में है। ये जो इमेज आप देख सकते हो, सी स्टूडेंट्स है, स्कूल स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ दे हैव विजिटेड दिस फॉर अ पिकनिक or for educational tour, they must have gone there. So I got this image from internet. यहाँ पे और मैंने images डाले हैं biodiversity parks के. So these are a best model for conservation of natural heritage in urban landscape. Urban areas में, urban cities में, regions में ये आप बना सकते हो जहाँ पे barren landscape है, and of course it would be the best model, है ना, by using which you can conserve the natural heritage, मतलब plants, animals, etc. ठीक है, चलो. This is about, there are some other tools for biodiversity records. How are these biodiversity records maintained? है ना, मैंने कहा था ना आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जिसमें सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ रहता है, डॉक्यूमेंटेड रहता है. सो दीज आर सर एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे होते हैं, बट दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच आर देयर इन योर बुक, सो विल डिस्कस अबाउट देम. फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, ठीक है, दीज आर रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस, दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. फ्लोरा क्या है? This has the account about habitat and distribution of plant life occurring in a particular region or time. Generally the naturally occurring or indigenous, that is native plant life. उस कंट्री को, जैसे इंडिया कंसिडर करते हैं, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में कितने सारे प्लांट्स हैं, उसको नेचुरली ऑकरिंग कहेंगे हम, इंडियन पीपल, या इंडिजिनस कहेंगे, या नेटिव प्लांट कहेंगे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे जो भी प्लांट्स है उसके लिए ये टर्म्स हम यूज़ करेंगे, नेचुरली ऑकरिंग, इंडिजिनस या नेटिव प्लांट्स, ठीक है. तो जो भी ऑलरेडी दोज प्लांट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, उसका जो भी हैबिटेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेयर दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर आर दे प्रेजेंट, उसका हैबिटेट क्या है एक पर्टिकुलर रीजन में या टाइम, ये सब इंफॉर्मेशन होता है, एंड इट इज़ देयर इन, इट इज़ प्लेस्ड इन वन प्लेस, तो उसको फ्लोरा कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लोरा. Then manual क्या है? It contains listings and description of the plant species which is found in an area, है ना. जैसे कौन से प्लांट्स है, एक एरिया है, एक रीजन है, लेट्स से महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कितने सारे प्लांट्स अवेलेबल है ना. ये सिर्फ प्लांट्स के लिए है, माइंड यू, ऑल दीज आर फॉर जस्ट प्लांट्स, ठीक है. तो एंड उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, दिस विल बी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया. हाँ, not that area could be, जैसे मैंने बोला, एक छोटा एरिया भी हो सकता है या एक बड़ा एरिया, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट पूरा या कर्नाटका स्टेट, ऐसा भी हो सकता है. सो दिस इज नॉट, बट छोटा भी हो सकता है, एज आई सेड. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में आई वुड से जस्ट लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कोल्हापुर. तो बस कोल्हापुर में कितने सारे प्लांट्स अवेलेबल है, उसका लिस्ट और उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन, आई बात समझ में, तो हो गया एक मैनुअल. तो इट कुड बी ऑफ एनी विलेज, अ सिंगल विलेज, और 4-5 villages, or a state. It could be anything, a big or a small. So this is not necessarily exhaustive, and it is usually user defined. मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत exhaustive हो, बहुत बड़ा हो. Exhaustive मतलब बहुत सारा बड़ा, बहुत सारी details, ज़रूरी नहीं है. थोड़ा information उसमें होता है specific to an area, and एक user friendly है या usually user defined है, मतलब हम इसको एकदम easily use कर सकते हैं, है ना. लोग इसको easily कुछ देखने के लिए फटाफट कैरी कर सकते हो, फटाफट यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी अगर आपको जानना है कोल्हापुर में कितने प्लांट्स है, फटाफट वो मैनुअल उठा लो, देख लो, आपको पता चल जाएगा.
ठीक है, इजी टू यूज़, तो इसलिए यूजुअली उसको जब इजी टू यूज़ कोई चीज़ें होती है ना उसको यूजर डिफाइंड कहा जाता है. देन मोनोग्राफ, इट कंटेन्स सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप, वन टैक्सॉन, है ना. तो मोनोग्राफ में किसी भी प्लांट के बारे में जो भी प्लांट्स के बारे में ना, तो उनका पूरा सब डिटेल नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप या वन टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होगा. ठीक है, जैसे कि किंगडम या फिर फाइलम या क्लास या फैमिली ले लो या जीनस ले लो, तो एक जीनस ले लिया. हाँ, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है, तो मैंजीफेरा जीनस है. तो लेट्स से मैंजीफेरा ये जो जीनस है ये एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप भी उसको कहते हैं या टेक्सॉन भी कहते हैं. जीनस, स्पीशीज, फैमिली, क्लास, है ना, ऑर्डर, फाइलम या डिवीजन या किंगडम. तो ये क्या है, ये सारे एक इंडिविजुअल टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स है. आई बात समझ में. तो एक मैंजीफेरा ये जीनस मैंने लिया, तो एक मोनोग्राफ में पूरा मैंजीफेरा के बारे में लिखा हुआ रहेगा, उसके डिटेल्स होंगे. आई बात समझ में. तो दैट इज मोनोग्राफ. कैटलॉग मतलब इट इज सिंपली अ लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीशीज ऑर्गेनाइज्ड अल्फाबेटिकली, दैट्स इट. कैटलॉग नॉर्मल है ना, किसी भी चीज़ का कैटलॉग, काफ़ी सारे कैटलॉग्स होते हैं, आपने कभी ना कोई तो कैटलॉग देखा ही होगा. उसमें कोई डिटेल्स कुछ नहीं है, बस लिस्ट है एज पर अल्फ़ाबेट्स, है ना. ए से स्टार्ट होगा, फिर ए से द नेम्स ऑफ प्लांट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो पूरा लिस्ट होगा. फिर बी सी ऐसे जेड तक, दैट्स इट. इट इज सिंपली द लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीशीज ऑर्गेनाइज्ड अल्फाबेटिकली, उसको कैटलॉग कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. सो दीज आर सम अदर टूल्स विच आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी records. The last part is key. I'll just have a sip of water and then we'll continue. Okay. So the last part of this particular chapter, living world, is key. अब की क्या है? टेक्सोनॉमिक की उसको बोलते हैं. की मतलब अपना दरवाजे वाला वो वाला की नहीं, कि लॉक ओपन करने के लिए. दिस इज टेक्सोनॉमिक की. It is used to identify an unknown organism. It is made to identify an unknown organism. It could be plant, animal, microorganism, anything. Systematists, matlab taxonomists, okay, those who are involved in identifying the organisms, they rely on keys to help identify known organisms, and secondly they determine whether they have discovered a new organism entirely. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला हर्बेरियम का रोल बताया था, तो वैसे ही है ना, ये कीज बनाए जाते हैं. कीज भी उसके लिए ही यूज किए जाते हैं, टू हेल्प अननोन प्लांट और टू डिटरमाइन वेदर न्यू organism has been discovered. So this is not just for plant. Keys are, as I said, I repeat, keys are for plants, microorganisms और animals. हाँ, सबके लिए होते हैं. चलो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. See, I make my own presentations. ठीक है, सो ये भी मैंने खुद सारे स्लाइड्स मैंने खुद बनाए हुए हैं. आई मेक माई ओन प्रेजेंटेशंस, तो दिस विल help you. I definitely believe so. So please go through these points properly. चलो देखते फर्स्ट पॉइंट की का. की consists of a series of choices based on observed features of the plant specimen. है ना, की consists of a series of choices based on observed features of the plant specimen. When you observe a plant specimen, यहाँ पे plant का example देके बोला है, but as I said, यहाँ पे plant specimen बोलो, animal specimen बोलो, कुछ भी बोलो, for all organisms it is there. ठीक है, तो आप जब plant specimen देखते हो, हाँ, तो जब एक की बनता है वो कैसे बनता है? It is based on whatever you observe. हाँ, और whatever you observe, वो observations के ऊपर है ना ये की बनता है. There are choices given. For example, if I give you a flower, if I show you a flower, let's say it is red color flower, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी कि the color of the flower is red. ये एक सेंटेंस हुआ, एक एंड दूसरा और एक दूंगी आपको चॉइस करने के लिए. दो स्टेटमेंट्स आपको मैं दूंगी. ठीक है, कि द कलर ऑफ द फ्लावर्स इज रेड, दूसरा स्टेटमेंट होगा द कलर ऑफ द फ्लावर्स इज व्हाइट. तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक को चूज करना है कि नहीं. तो आप क्या बोलोगे, अगर रेड फ्लावर्स है
जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप क्या बोलोगे? विच पॉइंट यू विल चूज? द फर्स्ट पॉइंट यू विल चूज, राइट? आप बोलोगे द कलर ऑफ द फ्लावर इज रेड। आई बात समझ में? तो बेसिकली द की कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चॉइसेस, कलर हो गया, हाइट हो गया, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग पॉइंट्स, बट एवरी पॉइंट विल हैव टू चॉइसेस, टू स्टेटमेंट्स, उसमें से आपको एक चूज करना है, ठीक है? एंड दीज आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व फीचर्स। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग कीज होती है, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन और एनिमल स्पेसिमेन। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखो, it provides a choice between two contradictory statements resulting in the acceptance of one and rejection of one। यही मैंने बोला ना आपको, जब चॉइस दी जाती है एंड दोस टू स्टेटमेंट्स जिसके बीच में आपको चॉइस करना है, ऑब्वियसली दे वुड बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर। सो ऑब्वियसली यू विल चूज ओनली वन, वन विल गेट चोजन, वन विल गेट एक्सेप्टेड बाय यू एंड ऑब्वियसली द अदर वन विल गेट रिजेक्टेड, ठीक है? थर्ड पॉइंट देखो, a single pair of contradictory statements is called a couplet and each statement of couplet is termed as a lead। तो ये जो दो, हर एक पॉइंट में जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं, तो एक वो इट्स अ सिंगल पेयर। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे, बट सिंगल पेयर में जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, दे आर कॉल्ड एज कपलेट। क्या कहते हैं उसको? कपलेट। कि जैसे मैंने बोला अभी कलर ऑफ फ्लावर, तो उसमें मैंने दो पॉइंट्स डाले, रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, द फ्लावर इज रेड, द फ्लावर इज वाइट। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स है इस पेयर में, so they are called as couplet, this pair is called as couplet, ठीक है? and each statement of that couplet, मतलब मेरा पहला स्टेटमेंट द फ्लावर्स आर रेड एंड दूसरा स्टेटमेंट था फ्लावर्स आर वाइट, तो each statement in a couplet that is termed as lead, okay, that is termed as lead। चलो, so last next point, by making the correct choice at each level of the key, one can eventually arrive at the name of the unknown plant। By making the correct choice, you will choose one, you will reject one। So by making the correct choice at each level, है ना, of the key, so we can eventually arrive at the name of the unknown plant या the name of the unknown animal specimen, ठीक है? So this is how a key works। I'll give you some examples। ये तो standard rules बताए, I will give you some examples जिससे आपको और अच्छे से समझेगा। So देखो, ये एक एग्जाम्पल है। अगर आपके पास कोई वर्टिब्रेट एनिमल है, लेट्स से, अब यू डोंट नो कि वो कौन सा है, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? देखो एग्जाम्पल देखो, वर्टिब्रेट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, डज इट हैव फर? तो उसमें दो स्टेटमेंट्स है ना, येस या नो, येस इट हैज फर या नो। तो ये येस और नो हो गया कपलेट, ठीक है? एंड इंडिविजुअली उसको कहेंगे लीड एंड पेयर को कहेंगे कपलेट। आई होप इट्स क्लियर। चलो, तो हैज इट फर, तो आप एक चूज करोगे, एक रिजेक्ट करोगे। तो मैंने कहा येस, आई सिलेक्टेड येस, तो इफ येस देन इट कुड बी अ मैमल। एंड नो बोला मैंने, तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फिर नो बोला तो कुछ नहीं, रिजेक्ट हुआ वो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डज इट हैव फेदर? मैमल्स को येस कहाँ है, याद रखना। देन डज इट हैव फेदर, येस और नो अगेन? आई से येस, तो इट कुड बी बर्ड्स, करेक्ट। एंड व्हेन आई से नो, कुछ नहीं, दैट इज रिजेक्टेड। अगेन थर्ड क्वेश्चन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डज इट शो? इफ इट इज येस, इट कुड बी अ रेप्टाइल, राइट? इफ नो, कुछ नहीं। अगर अभी येस बोला है तो रेप्टाइल्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, डज इट हैज गिल? है ना, तो आप बोलोगे या तो येस अगेन या तो नो। अगर येस है तो फिश है, अगर गिल्स नहीं है तो एम्फीबियंस है, क्योंकि वर्टिब्रेट ही है ना। आई होप यू गॉट दिस। सो फाइनली वी केम टू अ कंक्लूजन दैट ये जो वर्टिब्रेट है इट इज एन एम्फीबियन, ठीक है? सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल विच आई गेव to make you understand how exactly the key is used। देखो, और एक एग्जाम्पल डाला है मैंने, वो भी बता देती हूँ। फ्लावर्स, ये थोड़ा प्लांट्स के रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट देखो, फ्लावर्स आर क्रीम कलर, fruiting calyx enclosing the berry,
तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ए और बी दोनों दिया है मैंने, दूसरे में है फ्लावर्स आर वाइट या वॉयलेट, फ्रूटिंग कैलिक्स नॉट इंक्लोज्ड इन द बेरी, ठीक है। तो आप ये ए और बी, ये जो पेयर है, तो उसको आप कपलेट बोलोगे, एंड ए एंड बी इंडिविजुअली इज लीड। अब ये समझ में आ गया आपको। यू विल चूज इधर ए और बी, अगर ए चूज किया तो फाइसालिस है, अगर बी चूज किया तो नहीं, बी तो आप इधर इधर इस एग्जाम्पल में ए चूज किया गया है, ठीक है, एंड सो ए चूज किया तो फाइसालिस, तो बी इज रिजेक्टेड। अभी सेकंड पॉइंट देखो, रिजेक्ट किया तो आगे गए, हम सेकंड पे गए। करोला इट रोटेट्स एंड फ्रूट इज अ बेरी, अगर ऐसा है, एंड अगेन बी में करोला फनेल फॉर्म या साल्वर फॉर्म, फ्रूट इज अ कैप्सूल। अगर ए को चूज किया, बी को रिजेक्ट किया, तो सोलानम है, ठीक है। आगे गए, थर्ड पे आए, रेडिकल लीव्स आर प्रेजेंट, फ्लावर्स इन रेसमस, वो पोजीशन है फ्लावर्स का। देन फ्रूट्स विदाउट प्रिकल्स, देन अगर ऐसा है तो निकोटियाना, और अगर बी चूज किया आपने तो आगे कुछ नहीं है, तो बी चूज किया तो या तो दतूरा है, ए चूज किया तो निकोटियाना है, बी चूज किया तो दतूरा है। आई होप यू गॉट दिस। रेडिकल लीव्स एब्सेंट, फ्लावर्स आर सॉलिटरी मतलब इंडिविजुअल, फ्रूट्स विद प्रिकल्स। तो इफ ए निकोटियाना, जिससे निकोटिन मिलता है, निकोटिन इज यूज्ड इन टबैको, है ना, सिगरेट्स वगैरह, एंड अगर बी तो दतूरा, दतूरा से भी भांग वगैरह बनता है, पॉइजनस फ्लावर है वो भी। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज हाउ कीज आर यूज्ड। आई गिव यू 2 एग्जांपल्स. So by this we complete chapter 1, that is living world. Now हमने सारे basic principles of life we studied in it along with different examples. Then we also studied taxonomical aids, various taxonomical aids with so much of explanation, diagrams and examples. I hope you have understood it. If anybody has any query, please don't be shy. Please don't fear. It's an open platform, YouTube. Go ahead, ask your queries in the comment box. When I see it, I will definitely reply to you. ठीक है? In my opinion, no doubt is a silly doubt. मेरे जो सर थे, वो हम मेरे जो mentor थे, he used to always say that no doubt is a silly doubt. So I also believe in the same thing. No doubt is a silly doubt. If anything strikes you, if anything is doubting you, please go ahead and ask. ठीक है? We are there to help you. Let's quickly go through the poll. First question. Label in herbarium sheet is to be placed at lower left corner, lower right corner, upper right corner या upper left corner. तो answer is A. Okay, that is lower left corner. Left side में lower side है ना, lower left corner. अच्छा, next taxonomical aid from the following is notebook, notepad, herbarium, labels. Obviously, the answer is herbarium. If you listen to my lecture carefully, all these questions I'm 100% sure you will be able to solve. Third, pick out the odd one out. Herbarium, botanical garden, zoological park या flora. Odd one out आपको लेना है. So the odd one out over here is a zoological park. Why? Because herbarium, botanical garden and flora are related to plants, whereas zoological park is related to animals. That's why C, odd man out. Lal Bagh Botanical Garden is located in Hyderabad, Delhi, Bangalore या Mumbai. Okay, it is located in Bangalore. Lal Bagh Botanical Garden is located in Bangalore. ठीक है? चलो, म्यूजियम्स प्रिजर्व लार्जर एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये मैंने बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर, as skeletons in giant boxes, या by compressing and stuffing them into boxes, then by creating an environment that resembles their habitat so that they can survive for a longer period of time. म्यूजियम्स की बात हो रही है, पार्क्स की नहीं. तो म्यूजियम में डेड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स होते हैं. तो आंसर इज सी, है ना, बाय कंप्रेसिंग देम एंड स्टफिंग देम इनटू द बॉक्सेस. एक तो उनके अंदर कुछ कुछ स्टफ किया जाता है, ग्रास, ड्राई ग्रास, कॉटन एक्सेट्रा, फिर उनको बॉक्सेस में भी आप स्टफ करके कंप्रेस करके प्रिजर्व करते हैं उनकी बॉडीज को. सी इज द आंसर. लेट्स गो अहेड. Last 2 questions and then we are done. Taxonomical aids help you in identification and classification of organisms. True or false? Of course, the answer is true. Then, the pair of options used in keys to determine the taxonomy of an organism is called the pair of options. Doublet, couplet, manuals या description.
कपल है ना, पेयर है, साथ में है, कॉन्ट्रास्टिंग है बट साथ में है. सो आंसर इज कपलेट. ठीक है, बी इज द आंसर. फाइन. सो पोल इज ऑल्सो डन. I hope you liked my lecture. If you like my lectures, please share the link. है ना, subscribe to this channel, share this link with your friends. I want maximum students to benefit out of these lectures, and you can use my YouTube referral code, that is APMAM Live. These are my initial lectures are recorded, but soon I will come live to meet you all. Okay, and till then, you read this, you observe this. If any queries, you can ask me in the chat box. And don't forget, my YouTube referral code is APMAM Live. Hope to meet you all soon. Okay, chalo. So together we can crack the examinations. All the best, all of you. Have a good day. Stay safe. Take care. Chalo. Bye.